اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے معزز اور قابل احترام دوستو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شریف و نفس اور کمزور آدمی تھا۔ اللہ کے حضور یہ دعا کرتا رہتا تھا کہ مجھ غریب بے سہارا کو غیب سے روزی عطا فرما اور مجھے محنت و مشقت کے عذاب میں نہ ڈال۔ مریل گدھے پر گھوڑوں اور اونٹوں کا بوجھ نہیں لادا جا سکتا، پاؤں والا تو چل کر روزی پیدا کر سکتا ہے اور جس کے پاؤں نہ ہوں اس کو تیرا ہی آسرا ہے۔ اے اللہ سب کی سننے والے، میں منہ سے ہی تجھ سے مانگ سکتا ہوں لیکن مشقت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ بس یہی درود و وظائف اس کے دن رات کی مصروفیت تھی۔ اس کا یہ عمل ہر عام و خاص میں مشہور ہو چکا تھا۔ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے، خدا نے ہر شخص کی روزی محنت و مشقت کے راستے اتاری ہے، لیکن اسے دیکھو، ہاتھ پیر ہلائے بغیر خدا سے اپنا رزق طلب کرتا ہے۔ پیغمبر خدا کو دیکھو جنہیں اللہ نے معجزے بھی عطا کیے ہیں، خوش الحان ایسے کہ جن و انس چرند و پرند تو ایک طرف پہاڑ بھی متاثر ہوتے ہیں، باوجود اتنی شان کے وہ بھی بغیر مشقت کے روزی حاصل نہیں کرتے۔ مگر اسے دیکھو، یہ ناکارہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے بیٹھے بٹھائے خزانہ مل جائے اور کوئی کسب نہ کرنا پڑے۔ لوگ سو باتیں کرتے، وہ کسی کی پرواہ نہ کرتا، برابر اپنی آہوزاری میں لگا رہتا۔ اس کی دعا کا چرچا سارے شہر میں عام ہو گیا کہ یہ کیسا انسان ہے جو خالی تھیلی میں پنیر حاصل کرنا چاہتا ہے، جو تلاش کرے آخر اس کو مل جاتا ہے۔ خدا سب کی دعائیں سنتا اور مرادیں پوری کرتا ہے۔ اس شخص نے دعاؤں اور رونے دھونے کی حد کر دی تو رحمت حق جوش میں آئی اور اس کی مراد بر آئی۔ زور سے دروازہ کھلا اور ایک گائے اس کے گھر میں گھس آئی۔ اس نے فوراً گائے کو پکڑا، ٹانگیں باندھ کر بے تامل حلق پر چھری پھیر کر ذبح کر دیا۔ پھر قصاب کو بلوایا کہ اس کو کاٹ کر بوٹیاں بنا دے۔ گائے کا مالک گلی کوچوں کی خاک چھانتا ہوا گائے تلاش کرتا ہوا ادھارا نکلا۔ دیکھا کہ اس کی گائے ذبح بھی ہو چکی ہے اور قصاب اس کی بوٹیاں کرنے میں مصروف ہے۔ اس نے رونا دھونا اور چلانا شروع کر دیا، ارے ظالم، یہ کیا غضب کیا، یہ گائے تو میری تھی، تجھے بھلا کیا حق تھا اسے پکڑ کر ذبح کرنے کا؟ دعا مانگنے والے نے جواب دیا کہ سنو برادر، زیادہ چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں، میں برسوں سے اس دعا میں مصروف ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا رزق میرے پاس پہنچا دے۔ اس نے دعا قبول کی، میں نے اسے خدا داد سمجھ کر ذبح کر ڈالا۔ یہ جواب سن کر گائے کے مالک کے غیظ و غضب کی انتہا نہ رہی۔ اس نے پہلے درویش کی ٹھکائی کی، پھر اسے گربان سے پکڑ کر حضرت داؤد علیہ السلام کی عدالت میں لے گیا۔ اب احمق، اگر محض دعا مانگ کر دوسروں کا مال ہضم کرنے کی اجازت ہو جاتی تو پھر کوئی کچھ نہ کرتا، صرف دعا کے بل بوتے پر لوگ ساری دولت کے مالک اور حقدار بن جاتے۔ لوگوں نے گائے کے مالک کی باتیں سنی تو اسی کو حق پر قرار دیا۔ درویش نے اس بے بسی کی حالت میں آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہا کہ اے خدا رحمان و رحیم، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنی آرزو کی تکمیل کے لیے سینکڑوں روز و شب و آہذاری کرنے اور دعا مانگنے میں صرف کیے، اور میں نے روز الست جو خواب دیکھا اسی نے مجھے تیری بندگی میں مست کر دیا۔ میری مثال اس مست اونٹ کی سی ہے جو سستی اور تھکان محسوس کیے بغیر منہ سے جھاگ نکالے بوجھ اٹھائے چلا جاتا ہے کہ اپنی اونٹنی سے ملاپ کرے۔ میں نے جب اپنی مراد پائی تو یہ مجھے تیرا بندہ نافرمان سمجھ کر شیطان کی طرح کوس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، میں تو ہمیشہ تیرے ہی آگے داستے سوال دراز کرتا رہا ہوں، تو میری پردہ پوشی کر لے اور مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے۔ گائے والے نے جھلا کر کہا کہ ابے ادھر آسمان کی طرف کیا دیکھ رہا ہے، ادھر میری طرف دیکھ اور حقیقت کا سامنا کر۔ کیا تو سمجھتا ہے کہ خدا اور اس کے بندوں کو اس فریب میں مبتلا کر کے صاف نکل جائے گا؟ دعا مانگنے والے نے اپنی پیشانی زمین پر رکھ دی اور رو کر بولا کہ اے خدائے ذوالجلال، اپنے اس بندے کو رسوا نہ کر، میں بے شک برا ہوں، خطا کار ہوں، تو عیبوں کو ڈھانپنے والا ہے، اور اس نازک وقت میں میری مدد فرما۔
मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की अदालत में पेश हो गया। पहले गाय के मालिक ने दावा पेश किया और कहा कि ऐ पैगंबर खुदा, मेरी गाय इत्तेफाक से इस शख्स के घर में जा घुसी। ये खुदा जाने कब से ताक लगाए बैठा था, उसने मेरी गाय को पकड़कर ज़िबह कर दिया। आपके सामने मेरी फरियाद है, इससे दरियाफ्त करें कि इसने ऐसा क्यों किया। दुआ मांगने वाले ने अपनी सफाई में यूं अर्ज किया कि इस शहर के सभी लोग मुझे जानते पहचानते हैं। आज तक मैंने किसी का माल मारा, ना चोरी किया और ना ही नाजायज किसी को परेशान किया। मेरा गुज़श्ता कई साल से ये मामूल रहा है कि शब व रोज़ बारगाह इलाही में ये दुआ करता रहता था कि बगैर मुशक्कत और मेहनत के मुझे रिज़्क़ अता फरमा। आखिर मुसलसल दुआओं के बाद अल्लाह ताला ने मेरी आरज़ू सुनी और ये गाय खुद बखुद मेरे घर में घुस आई। मेरी आंखों में उसे देखते ही नूर आ गया कि हक ताला ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और रिज़्क़ हलाल बगैर मेहनत के मिल गया। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए इस गाय को ज़िबह कर दिया। ये शख्स ना जाने कहां से शोर मचाता हुआ आ गया और कहने लगा कि गाय मेरी है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह सुनकर फरमाया कि ऐसी माकूल दलील दे जिसकी बिना पर तूने गाय ज़िबह की। तेरे बयान से ये साबित होता है कि वो गाय तुझे मालिक ने दी, ना तूने खरीदी। दुआ मांगने वाले की आंखों में आंसू आ गए। ऐ पैगंबर खुदा, आप भी वही कहने लगे जो दूसरे कह रहे हैं। एक आह दर्दनाक उसके दिल से निकली और उसने आसमान की तरफ निगाह उठाकर कहा कि ऐ मेरे दिल का दर्द जानने वाले, तू दाऊद अलैहिस्सलाम को रोशनी अता फरमा और इन्हें हकीकत हाल से आगाह फरमा। ये कहकर वो धाड़े मार मार कर रोने लगा। उसकी आवाज में ऐसा दर्द था कि ना सिर्फ संग मूम हो गए बल्कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दिल भी दहल गया। उन्होंने गाय के मालिक से कहा कि इसका फैसला एक दिन के बाद किया जाएगा। पैगंबर खुदा अपने हुजरे में दाखिल हुए और अपनी इबादत गाह का दरवाजा बंद कर दिया। जिक्र और अज़कार के बाद अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ की कि ऐ अलीम खबीर आका, मुझे हकीकत हाल से आगाह फरमा। अल्लाह ताला ने अपने नबी पर इसरार और रमूज खोल दिए। दूसरे दिन दोनों को तलब किया गया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यह फैसला दिया। गाय के मालिक को कहा कि इस शख्स का पीछा छोड़ दे और इसे माफ कर दे। हक ताला ने तेरे गुनाहों की पर्दापोशी फरमाई है, तू भी इसकी तारीख का हक अदा कर और अपनी गाय की तरफ से सबर कर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का इरशाद सुनते ही उस बदबख्त ने कहा, क्या अब कोई नई शरीयत नाफिज हो गई है? आपके इंसाफ की शोहरत तो जमीन और आसमान तक पहुंच चुकी है, मगर मेरे साथ ये जुल्म क्यों? ये इंसाफ नहीं, जुल्म है। दूसरी मर्तबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अपना सारा माल और जायदाद इस मजलूम के हवाले कर दे, वरना तेरी सख्त रुसवाई होगी। और कुछ अजब नहीं कि जो जुल्म और सितम तूने किए हैं वो भी जाहिर हो जाएं। गाय वाले ने ये कलिमा सुनते ही सर पर खाक डालना शुरू कर दी, गिरेबान फाड़ डाला, बदहवास होकर और मुंह में कफ भर कर बोला कि ऐ दाऊद, अच्छा फैसला सुनाया, मुझ पर जुल्म और ज्यादती की हद कर दी। नौज बिल्ला, मुझे तो मालूम होता है कि तू अपने हवास में नहीं रहा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसे करीब बुलाया और कहा कि ऐ बदबख्त, इस हंगामे से बाज आ, कहीं ये तेरी हलाकत का बायस न बन जाए। जो तूने बोया है वो अब काट। अब तीसरी मर्तबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तू अपने अहल व अयाल भी इसके हवाले कर दे। इस हुक्म पर तो वो पत्थर से अपना सर फोड़ने लगा। लोग भी हैरान थे कि हजरत ये कैसा हुक्म दे रहे हैं। जो शख्स तिनके की तरह नफ्स की हवा के बस में हो, वो जालिम और मजलूम में क्या तमीज कर सकता है? शेर भी शर्म करता है, वो हमसायों के शिकार पर हाथ नहीं डालता। तमाशाई पैगंबर खुदा अलैहिस्सलाम के अहकाम की असल वजह से नावाकिफ थे। इनमें से दो आदमी कहने लगे कि अल्लाह के नबी, आपकी जात बाबरकात से ऐसा सरीह जुल्म, हम सब हैरत में हैं। बेकसूर गाय वाले पर इतना अताब आखिर क्यों? और इसने नाहक गाय पकड़कर ज़िबह कर डाली, उसे आपने बरी कर दिया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शायद अब वो वक्त आन पहुंचा है कि इस गाय वाले के पोशीदा राज जाहिर कर दिए जाएं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम सबको दरिया के किनारे एक बहुत पुराने घने दरख्त के नीचे ले गए। वो घना दरख्त जिसकी शाखें आपस में गुत्थी हुई थी, सूरज की शुआओं को जमीन तक पहुंचने नहीं देती थी। क्या तुम लोग जानते हो कि इस दरख्त के नीचे एक आदमी को कत्ल किया गया था? तुम नहीं जानते, अलबत्ता वो जानता है जिसने इस जमीन और आसमान को पैदा फरमाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हकीकत ये है कि इस गाय वाले ने अपने आका को कत्ल किया। ये शख्स असल में मकतूल का ज़र खरीद गुलाम था। उसने अपने आका को कत्ल करके इसके माल और दौलत और जायदाद पर कब्जा कर लिया। ये मजलूम दुआ मांगने वाला इसी मकतूल का बेटा है।
फिर इस बेरहम और संग दिल शख्स ने अपने मकतूल आका के यतीम बच्चों पर जुल्म ढाना शुरू किया, इनसे सब कुछ छीन लिया। यहाँ नमक हरामी पर उतर आया कि इसके आका के बच्चे दाने दाने के मोहताज हो गए। इस मरदूद ने अपने गुनाहों का पर्दा खुद ही फाश किया। जुल्म हमेशा रूह की गहराइयों में दुबका रहता है, लेकिन जालिम उसे खुद लोगों पर खोल रहा है। ऐ सगे दुनिया, तूने शरा के मुताबिक इस मुकदमे का फैसला मांगा था, शरीयत ने अपना फैसला सुना दिया, अब इसकी तामील करना तेरा फर्ज बनता है। तूने अपनी सफाकी और शकी और तलबी का ऐसा मुजाहरा किया कि खुदा की पनाह तूने आका को इस तरह छुरी से ज़िबा किया जिस तरह इस दुआ मांगने वाले ने तेरी गाय को ज़िबा किया था। वो खून आलूद छुरी राज फाश होने के डर से गड्ढा खोद कर तूने दफन कर दी थी। इसका सबूत यह है कि इस छुरी पर इसका नाम कुंदा है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जमीन खोदी गई, गड्ढे के अंदर से एक शख्स की खोपड़ी और लंबी सी छुरी बरामद हुई। अब गाय वाला खौफ से थर थर कांपने लगा। तमाशाइयों पर सख्ते का आलम तारी था। लोगों ने अपने सरों से कपड़े और टोपियां हटा दी, नंगे सर होकर सामने आए और अर्ज करने लगे कि ए खुदा के सच्चे पैगंबर अलैहिस्सलाम, हम फितरी नाबीना साबित हुए, हमने आपकी ज़बान मुबारक पर एतबार न किया, आप हमारी गुस्ताखी माफ़ फरमा दें। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने सबको माफ़ कर दिया। फिर गाय वाले के बारे में हुक्म दिया, चूंकि उस शख्स के जुल्म का पर्दा खुल चुका है और ये कातिल है, इसलिए शरीयत का फैसला ये है कि इससे कसास लिया जाए। चुनाचा उसी छुरी के साथ इसकी गर्दन उड़ा दी गई। दोस्तों, इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है कि एक जालिम की हलाकत से एक जहान का छुटकारा हुआ और हर शख्स का हक ताला पर ईमान असर नौ ताज़ा हुआ। अजीज़म, इस हिकायत से सबक हासिल कर तू भी अपने नफ्स को मौत के घाट उतार। गाय वाला कौन है? तेरा नफ्स, कि जिसने अपने आप को जुल्म, धोखे और फरेब से बड़ा आदमी बना लिया है। बेमेहनत और मुशक्कत की रोजी कैसे मिलती है? ख्वाहिशात नफ्स को मार देने से असल वारिस अक्ल सलीम है, जो बेकस व बेआसरा और गरीब रहेगी, और खुद गर्ज बेरहम नफ्स जिसकी हैसियत गुलाम की सी थी, आका और मालिक बन बैठा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।